اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کل کا جو ویڈیو بنایا تھا اس سے آگے شروع کریں گے۔ یہ جماعت 8ویں سوشل سائنس، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، یا جسے ہم سویکس بھی کہتے ہیں۔ تو کل کے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ واٹ از اے لا اینڈ واٹ آر دا ویریس ٹائپس آف لا۔ آج ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے اور پڑھیں گے ہاؤ اے بل بیکم اے لا اور ایکٹ ان انڈیا، کہ کس طرح سے ایک بل، ایک مسودہ قانون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں، جو ہندوستان میں قانون بنانے کا سب سے بڑا ادارہ ہے اسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں یا پارلیمان کہتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ از دی ہائیسٹ لیجسلیٹو انسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ ہندوستان میں جو سب سے اعلیٰ ادارہ قانون بنانے کا ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ تو کوئی بھی بل، پارلیمنٹ کا پرائمری کام یہی ہے Parliament has an important role in making law. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. The primary function of a parliament is to make new laws, amend existing laws, and repeal old laws. For every procedure, a bill needs to be passed in both the houses of the parliament. Once bill passed in both the houses, bill needs to get the assent of the president to become an act. تو اسے ہم یوں سمجھیں گے کہ پارلیمنٹ کا پرائمری کام، بنیادی مقصد پارلیمنٹ کا ہے قانون بنانا، قانون عوام کے لیے مختلف قانون بنانا۔ تو کوئی بھی قانون کس طرح بنتا ہے؟ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 107، 108، 109 اور 110 یہ پارلیمنٹ کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ قانون بنائے۔ کوئی بھی قانون بننے سے پہلے اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، لوک سبھا بھی اور راجیہ سبھا بھی، اسے 2/3 میجارٹی کے ساتھ پاس کرتے ہیں، پھر وہ آخر پر صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے تاکہ صدر اسے اپنی دستخط کرے، اپنا اسینٹ دے، اور جب صدر ایک بار اس مسودے کو، اس قانون کو دستخط کرتا ہے تو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ قانون بنتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے جو یہ لا ہیں، بل 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے گورنمنٹ بل، دوسری ہوتی ہے پرائیویٹ ممبر بل۔ گورنمنٹ بل ہم اس بل کو کہتے ہیں جو کوئی بھی حکومت کا منسٹر پیش کرے۔ If a bill is introduced in the house by the minister, it is called government bill or public bill. یہی بل اگر کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، جب وہ پیش کرتا ہے تو اسے ہم پرائیویٹ ممبر بل کہتے ہیں۔ گورنمنٹ بل کو 7 دن چاہیے نوٹس، while government bill needs 7 days notice for its introduction, private bill needs 1 month notice. اس کا مطلب یہ ہوگا اگر گورنمنٹ بل ہے تو وہ 7 دن پہلے ہی تمام ممبرز کے پاس پہنچ جاتی ہے،
इंट्रोडक्शन के लिए। अगर वो प्राइवेट मेंबर के बिल हो तो उसे लाजमन 1 महीना पहले हर एक मेंबर के पास पहुंच जाना चाहिए या पार्लियामेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट बिल ज़्यादा चांसेस होते हैं पास होने के, और जो प्राइवेट बिल होती हैं उन्हें कम चांस होता है पास होने को। तो ये जो बिल या कानून हिंदुस्तान में पास होता है, इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। जो पहला मराहिल है उसे हम फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, या उसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ बिल कहते हैं, या मोशन फॉर द इंट्रोडक्शन बिल। इसमें क्या करता है, कोई भी मेंबर, चाहे प्राइवेट मेंबर बिल हो, चाहे प्राइवेट मेंबर बिल हो या चाहे गवर्नमेंट बिल हो, तो पहले सतह पर उस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जिसे हम मोशन फॉर इंट्रोडक्शन या मोशन फॉर इंट्रोडक्शन टू द बिल या मूविंग द बिल कहते हैं। कोई भी मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, वो पहले अपनी बिल को, अपने मसवदे को ऐवान में रखता है, तमाम मेंबर्स के सामने रखता है। तो वो उससे इंट्रोडक्शन देता है कि इस बिल का बुनियादी मकसद क्या है। तो इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, अगर इंट्रोडक्शन को अपोजिशन हो गई कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो जो ऐवान का प्रेजाइडिंग अफसर होता है, स्पीकर या चेयरमैन, तो वो उस पर ज़बानी वोट पास करवा लेता है। अगर ज़्यादा वोट आए बिल के इंट्रोडक्शन में तो वो बिल को ऐवान में पेश करता है। अगर ज़्यादा वोट उसके हक में ना आए तो वो उस बिल को वहीं पर खारिज कर देता है। एक बार जब ये पहले मरहले से बिल गुजरती है तो इसे फिर दूसरे मरहले के लिए भेज दिया जाता है। आफ्टर इंट्रोडक्शन द बिल इज ओपन फॉर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इन द सेकंड स्टेज। तो उसमें 4 कोर्स होते हैं। इट मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर पहले मरहले में इंट्रोडक्शन के गुजर गई तो दूसरे मरहले में या तो वो कंसिडरेशन के लिए हुकूमत उसे बहस के लिए ला सकती है, या अगर उसमें कोई खामी हो तो वो उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजती है। अगर सेलेक्ट कमेटी या वो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो दोनों ऐवानों की होती है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, उसके पास भेजती है। या अगर चौथा ऑप्शन इसमें है, इट मे बी सर्कुलेटेड और पुट ऑन वेबसाइट फॉर पर्पज ऑफ एलिसाइटिंग द पब्लिक ओपिनियन, या उसे इश्तिहारों में इश्तिहार किए जाते हैं ताकि हर एक इंसान तक वो बिल पहुंचे, ताकि वो इसे थारोली पढ़े। तो बुनियादी मकसद पहले जो 2 हैं, सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी, जो आखिरी ऑप्शन है सर्कुलेशन का, ये ज़्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल्स के होता है। ज़्यादातर ये नहीं होता है, ज़्यादातर बिल्स इंट्रोडक्शन कंसिडरेशन के लिए भेजी जाती हैं या किसी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजी जाती हैं। सेलेक्ट कमेटी, फिर जब कोई बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजी जाती है तो सेलेक्ट कमेटी उसे थारोली पढ़ती है, क्लास टू क्लास, हर एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ती है। फिर वो सेलेक्ट कमेटी मीटिंग्स करती है, जो क्लास उन्हें लगे कि ये लोगों के मफाद में है उसे वो रखते हैं, और जो क्लास उन्हें लगे कि ये लोगों के मफाद में नहीं है, ये कानून इससे मनफी असर पड़ेंगे समाज पर, तो वो उसे डिलीट करते हैं। फिर आखिरकार फिर वो उस मिनिस्टर के पास या जिसने वो बिल भेजी हो तो उस ऐवान के पास भेजी जाती है थर्ड स्टेज के लिए। और थर्ड स्टेज पर क्या होता है, थर्ड स्टेज पर अगर जो सेकंड स्टेज में अगर वो कंसिडरेशन को या सेलेक्ट कमेटी ने उसे
क्लास टू क्लास डिस्कशन करके थारोली पढ़ के भेजा होगा, तो वो या तो वो पास होती है थर्ड स्टेज में, जो ऐवान उसे पेश करता है उसी ऐवान में पास होती है, या जो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजी जाती है वो उसमें कुछ तरमीम करते हैं, या सेलेक्ट कमेटी वो तायन करती है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, तो वो उसे रिजेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो गवर्नमेंट बिल्स होती हैं वो पास ही होती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होती है। अगर कुछ अमेंडमेंट सेलेक्ट कमेटी करे भी तो वो उस अमेंडमेंट को पास करते हैं, फिर उसे ऐवान में पेश किया जाता है, फिर ऐवान में वो सीरहा बहस मुबाहसा होता है उस बिल पर, फिर जब बहस होकर पूरे ऐवान के जो भी मेंबरान हैं मुतमीन हो, फिर उसे वोट किया जाता है। चूँकि हुकूमत की जो बिल होती है, हुकूमत के पास मेजॉरिटी होती है, तो ज़बानी वोट से उसे फिर उस ऐवान से पास किया जाता है, फिर दूसरे ऐवान में भेजा जाता है। तो दूसरा ऐवान भी उसे इसी तरह से थारोली पढ़ता है, पास करता है ज़बानी वोट से। अगर दूसरे ऐवान ने उस बिल को रिजेक्ट किया या वापस भेज दिया पहले ऐवान के पास, तो पहले ऐवान के पास फिर जो ये प्रोसेस है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ये फिर दोबारा करनी पड़ती है उस बिल को, फिर जाकर फिर उस ऐवान के पास भेजी जाती है। जो दूसरा ऐवान उसे उज़रात पेश करता है, तो उस उज़रात को दूर करने के लिए जो पहले ऐवान में, जिस ऐवान में बिल पेश की जाती है, तो उस ऐवान में उस बिल को क्लियर होना पड़ता है। तो कुछ अहम नुकात जो आपके याद रखने के लिए मैंने चुने हैं, तो आप उसे याद रखोगे। ये मैं पूरी तरह से लाने की कोशिश करता हूँ। A bill in other house for more than 6 months is deemed to be rejected but does not mean that a bill get lapsed. अगर कोई भी बिल किसी भी ऐवान में 6 महीने से ज़्यादा रह गई हो तो उसे रिजेक्ट समझा जाता है। The bill which gets lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha gets lapses, and in such cases no joint sitting is called. अगर कोई बिल लैप्स होती है लोकसभा के तहलील होने पर, तो वो उस बिल को फिर जॉइंट सेशन में दोबारा नहीं लाया जाता है। फिर जब नई बिल लानी पड़ती है तो नए सिरे से नया मसवदा लेकर आना पड़ता है। In joint sitting, the disputed provisions are either fully accepted or fully rejected. जो joint sitting होती है, joint sitting कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जब मुश्तरका इजलास होता है, या उसमें बिल पास हो जाती है या उसमें बिल टोटली रिजेक्ट हो जाती है। तो आखिर पर जब ये बिल दोनों ऐवानों से पास होती है तो इसे भेजा जाता है सदर के पास, और सदर इसे आखिर पर अपने दस्तखत करते हैं। तो फिर यही बिल गवर्नमेंट के जो सरकारी इदारा होता है या गैजेट होता है, उस गैजेट में छाप दी जाती है। तो ऐसे ये कानून बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना चाहिए कि कोई भी बिल कानून बनाने के लिए हिंदुस्तान में सबसे जो आला इदारा है दैट इज पार्लियामेंट। किसी भी कानून को मोर्दे वजूद में आने के लिए पार्लियामेंट से होकर गुजरना पड़ता है। एक बार पार्लियामेंट उसे पास करे, फिर उसे सदर के पास भेजा जाता है, और सदर उस पर अपने दस्तखत करता है। फिर जब सदर की दस्तखत उस पर हों तो वो आखिरकार एक कानून बन जाता है। थैंक यू।